Telangana government aims to bring dignity to every BPL family by financially and technically assisting them in constructing permanent Pakka houses with adequate amenities. The weaker section housing program is implemented to provide houses to low socio-economic sections and BPL families at rupees 5.04 lakh in rural areas and 5.30 lakh in urban areas and rupees 7 lakh and 7.90 lakh per house in GHMC areas. As on 31st March 2024, the government has taken up 2,30,336 houses with a project cost of rupees 15,698.56 crores. So far, 1,54,260 houses have been completed with an expenditure of 12,560.74 crores. 42,047 houses are nearing completion and the balance of 34,029 houses are at various stages of construction. 1,31,237 houses were handed over to the beneficiaries. In 24-25, 228 houses were constructed in Rangareddy district as part of this program. In Indrama Illu, the government has proposed to construct 4.5 lakh houses per annum. That is 3,500 houses in each constituency. The budgetary allocation for Indrama Illu scheme as per the budget book of housing demand number 18 is rupees 2,336 crores, excluding the allocation under SC, ST, SDF. But the amount required would be 10 times more. It could be around about 23,360 crores. If the allocations are pegged at the current rate, only 1/10 of the sanctioned houses in a year will be constructed. We may point out that the Congress government has committed to provide assistance for 25 lakh houses under Indrama Illu scheme, and we don't know how many years it will take to achieve the target. I am reminded that the Honorable Chief Minister Janab Revant Reddy Sahab met Prime Minister Narendra Modi on 4th July and requested him to sanction 2.5 million houses under PMAY and even stated that the state was prepared to align its guidelines with those of PMAY. In the budget of housing, an allocation of 4,644 crores is made for PMAY as a centrally sponsored scheme. There is a need to clarify on the housing schemes in the state, including the fate of 2 BHK housing scheme of the earlier government. Before the assembly election, allotment letters were handed over to beneficiaries of 2 BHK housing by the state administration, and the process of handing over the possession was stopped midway when the model code of conduct came into force with the announcement of poll schedule. Now the families who were allotted the houses but not handed over the keys are virtually left on roads, as the new government has refused to hand over the positions to them. We request the government to hand over the position of 2 BHK houses to all those beneficiaries who were provided the allotment letters. We believe that the beneficiaries do not change with every change of government. सर यहाँ पे आपसे एक गुजारिश ये है साहब कि बल्लागुड़े में 2 BHK है, उसका हैंड ओवर बाकी है. JNUM के उप्पगुड़े में हाउसेस है, उसका हैंड ओवर बाकी है. साहब एक बात ये है कि जब यहाँ पे इस ऐवान में मेरे ख्याल जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पे ठहर कर 2 दिन पहले ये बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसा हालात हुआ था कि ये जमीन मैंने मेरी रिक्वेस्ट पे लोगों से दिलवाई और वहां पे हुकूमत ने 2 BHK बनाया, और जब 2 BHK बनाया और वो लोग आके मुझसे सवाल करते हैं तो यहां पे सवाल होने के बावजूद भी क्यों कलेक्टर जाके वहां पे पोजीशन क्यों नहीं देते? क्यों यहां पे सिर्फ बात को सुनकर खामोश बैठ जाते हैं? कि यहां पे जो बात होती है क्या उनका काम नहीं है कि यहां पे फ्लो लीडर साहब ने ये बात उठाई, उनको चाहिए कि वहां पे जाए, वो देखें और वहां के जो गरीब जो हुकूमत के बोलने पे जो घर खाली करे उनको वापस उनका पोजीशन दिया जाए. क्या पोजीशन सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाता? आप दिया गया है तो आपको चाहिए सर कि उनसे सवाल करें, उनको कहें कि जाइए हालात का जायजा लिया और वहां पे पोजीशन दिया जाए. साहब मंकाल में तकरीबन पुराने शहर के जो हाउसिंग है सब मंकाल में दिए गए, पोजीशन सर्टिफिकेट दिया गया और उनको घर नहीं दिया जा रहा, अलॉटमेंट लेटर हुआ. इसलिए हम ये कहते हैं साहब कि हुकूमत बदली कोई बात नहीं, बेनिफिशियरीज नहीं बदलना चाहिए. गरीब तो गरीब है, चाहे आपकी हुकूमत में आइडेंटिफाई हो या आपकी हुकूमत में आइडेंटिफाई हो.
गरीब तो गरीब होता है, हुकूमत बदलने से गरीब को तकलीफ नहीं होना चाहिए, गरीब को परेशानी नहीं होना चाहिए, गरीब की बेबाक आवाज और उसकी सहूलतों के लिए आपको और हमको काम करना है। ये एक करते हुए देख लीजिए साहब, एक छोटी सी बात बस हो रहा हूं। भोजा गुट्टा मेरी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में है साहब। 8 से 8 साल पहले 550 घरों को विवेकानंदा नगर में, जो पूरे मेरे हिंदू भाइयों का घर है, उनको कहा गया कि यहां पे तुमको 2BH के बेहतरीन सहूलत दिए जाएंगे और 550 घर वालों को वहां के घरों को तोड़कर उनको झोपड़ियों में, झोपड़ी ऐसी है साहब, शायद ये जो बेंच पे यहां पे जितना बैठ रहे हैं उतने में वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं और जरूरत भी वहीं पे कर रहे हैं। उनकी हालात क्या है मैं मेरे आंखों से देखिए आप। वैसे 550 घर जो यहां पे ठहर के SCs की बात होती है, STs की बात होती है, दलितों की बात होती है, गरीबों की बात होती है, मेरे साथ चलिए गरीब किस हालत में मैं बताता हूं, क्या तकलीफ में वो लोग रह रहे हैं मैं बताता हूं। 8 साल से वो बेघर होके पड़े हुए मैं KTR साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने उस वक्त वादा किया था कि जैसा होगा हम वहां पे बनाएंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि इन 6-7 साल से ये लोग तकलीफ में हैं, इनको हम हो सका तो ये 7 साल का किराया भी देंगे। मगर हुकूमत आपकी है, आपको इकदाम लेना पड़ेगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने खुद मुलाकात की, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ जाके मैंने रिप्रेजेंट किया। वहां के भोजा गुट्टा के मुकामी लोगों ने ऑनरेबल रेवंत रेड्डी साहब से पर्सनली मुलाकात की। आपसे गुजारिश करता हूं साहब, भोजा गुट्टा के लोगों के साथ इंसाफ करिए, उनको घर बना कर दीजिए। वहां पे करीबन 1840 2BH के बनना है और वहां पे शिवाजी नगर, श्री राम नगर और खासतौर से विवेकानंदा नगर के जो हमारे हिंदू भाई है बड़ी तकलीफ में। वहां पे मुसलमानों की भी एक बहुत छोटी आबादी है मगर अक्सरियत हमारे हिंदू भाइयों की, उनको सहूलत देना हमारा काम।